Okay, so let's start with the systemic pathology, and in the systemic pathology, we'll start with the most valuable chapter in the whole systemic pathology. And like every year, in every exam, the question will be asked from here. It does not matter whether the exam is NEET PG or it is INI or it is FMG. One question will be from there. That is nothing but cardiovascular pathology. So let's start with the cardiovascular pathology. So in the cardiovascular pathology, the first question you are seeing here, this question, see this diagram. This is not a diagram, just see this picture. I wanted to say, and the question is asking, a patient died due to MI. Which strain is used to see the infarct portion of the heart? So a patient has died due to myocardial infarction. This question, if you have attended Preeti ma'am's LRR just few days ago, the first question she came up with was the this same question. So this is autopsy portion of the heart, है ना? And this portion is showing, this whole region is showing brick red color, whereas this region is showing the pale color. So this is nothing but the autopsy of the heart. ठीक है? So इसमें generally देखो, they are asking which stain is used to see the infarct portion of the heart. So this stain, if you have attended that lecture also, and in the normal lectures of Preeti ma'am's pathology, she talks about this too much. So this, everybody must be knowing that this is nothing but TPTC, that is triphenyl tetrazonium chloride, isn't it? Triphenyl tetrazonium chloride. So generally, if we see the autopsy of the heart, if we take an heart which has just undergone the myocardial infarction, up to 4 hours, the gross appearance, there does not appear anything on the gross appearance. We cannot see anything in the gross appearance. You have to see under the electron microscope or light microscope. That changes. In the electron microscope, we can pick it as early as 30 minutes, but in the light microscope, we still want some time. But in on the gross, we can't see anything just before the 4 hours. ठीक है? So उसमें अब देखने के लिए क्या करना होगा? So to see the gross appearance, we have to just paint it, है ना? We have to just paint it with a stain that is TPTC, triphenyl tetrazolium chloride. So देखो, less than 4 hours in MI, if we want to see कि MI has occurred or not, we'll use a stain that is nothing but TPTC. And TPTC का generally मतलब क्या होता है? Just understand the function of the TPTC. TPTC stains generally the LDH1, and normal heart में generally if there is LDH1 present, then it will be stained in the brick red color, which you are seeing here, this brick red color, because this is the normal heart. ठीक है? यहाँ पे LDH1 है, so it is being stained. And if there is MI, that is myocardial infarction, that will not contain LDH1, and we know that TPTC stains LDH1. So at that very portion, there won't be any LDH1 present here. So if there is no LDH1, the staining will not impart the brick color here. That's why this region will look pale color, and we can say that this region has been gone under myocardial ischemia. So वही चीज़ है यहाँ पे. अभी देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चेंज वो क्या होता है? जनरली 30 मिनट्स में हम देख सकते हैं. दैट इज नथिंग बट माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग. दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग. First light microscope change we can pick up as vacuolations of cells and waviness of cardiac fibers. Waviness of cardiac fibers. First gross change that will appear after 4 hours, that is mottling. The first gross change to appear is mottling, that occurs after 4 hours. So this was all about this generally TPTC related thing, and this is asked in so many exams. Now let's us do, अगर यहाँ पे स्टेन की बात हम कर रहे हैं, so let us do all the stains in the pathology at one place. सारे stains जो हैं वो एक जगह पे ही कर लेते हैं, so that it becomes easy for us if they ask any question related to stain. So if we see in the stain portion, the most common stain in the histopathology, the most common stain is hematoxylin and eosin, HNE stain. All of us know that. Most common in hematology, the most common stain used in hematology is nothing but Romanowski stain. If we see about the reticulocyte, that is stained by supravital stain. Lymphoblast, that is PAS. Myeloblast, NSC, SBB, oil red O, and MPO, that is myeloperoxidase. You have to remember this in the AML, myeloperoxidase. ठीक है? Monoblast, that is NSC, hairy cell, TRAP, lipid is oil red O and Sudan black. Iron is Prussian blue, है ना? Calcium 1 cosa and alizarin red S. Glycogen PAS stain, copper rhodamine, mast cell toluidine blue. आगे अगर देखें जनरली तो म्यूसिन, देखो लेट्स सी दिस म्यूसिन इज म्यूसी कार्मिन और एल्सियन ब्लू. नाम से याद रखो, म्यूसिन इज स्टेन्ड बाय म्यूसी कार्मिन और एल्सियन ब्लू. रेटिक्यूलिन फाइबर, दैट इज नथिंग बट सिल्वर स्टेन. इलास्टिन फाइबर 1 GSN स्टेन. एंड नेक्स्ट इज
कोलाजन मेसन ट्राइक्रोम, देखो दो मेसन आता है, मेसन ट्राइक्रोम एंड मेसन फोंटाना. सो कोलाजन विल बी मेसन ट्राइक्रोम वेयर एज द मेलानिन विल बी मेसन फोंटाना. ठीक है. एच पाइलोरी वार्थिन स्टेरी सिल्वर स्टेन है ना. क्रिप्टोकोकस विल बी इंडिया इंक. फंगस विल बी जनरली सिल्वर मेथिनामाइन पीएएस. ठीक है. अभी नेक्स्ट हम देख सकते हैं एमाइलोइड. एमाइलोइड विल बी कॉन्गो रोड. एमाइलोइडोसिस में जनरली आपसे पूछा जाएगा. सो दैट विल बी नथिंग बट कॉन्गो रेड. ठीक है. अभी आगे देखो. अ 50-year old chronic smoker, history of chronic smoking is being seen here, presents with intermittent claudication of the legs. Initially the pain was experienced during activity and later on at rest also. Later on rest पे also, but शुरू में जनरली क्या होता था, pain was experienced during activity only. The pain was experienced during activity only. So what is this case of? So अगर क्लासिकल प्रेजेंटेशन देखें हम, क्रोनिक स्मोकर का क्लासिकल प्रेजेंटेशन दिया है. सो दिस इज नथिंग बट बियर्जर्स डिजीज और पीएओ, जिसको हम थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस भी बोलते हैं, थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस. सो जनरली लेट्स सी बर्जर्स डिजीज की अगर हम बात करें, सो जनरली इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस. दिस इज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बर्जर डिजीज, एक बीईयू वाला है और एक बीईआर वाला है. ठीक है. सो जनरली यू वाला जो है वो ये है, जनरली एंजाइटिस वाला. सो दिस इज जनरली अ मिडिल एज पर्सन विल बी देयर. they'll give you a history of smoking and he will be mostly male. ठीक है. so generally intermittent claudication and rest pain भी later stages में rest pain भी होंगे. there will be gangrene. if we take the biopsy will have granulomatous inflammation, neutrophilic microabscess in the vessel wall associated with HLA-B5 and A9 mutation. इतना जरूर याद रखना है हमको. so this is nothing but Beers's disease or that is TAO, thromboangiitis obliterans. अभी आगे दिखाता हूँ मैं. A 60-year-old patient presents with throbbing unilateral headache. यूनिलैटरल हेडेक और वो भी थ्रॉबिंग पेन हो रहा है एंड नोडुलर थिकनिंग along with temporal artery. टेम्पोरल आर्टरी में नोडुलर थिंकिंग हो रहा है along with the temporal artery. Microscopic examination reveals giant cells and granuloma. What is the most likely डायग्नोसिस? तो अभी यहाँ पे देखो टाकायासु आर्थराइटिस करके एक में दिया है. देखो ऊपर भी ये ऑप्शन में था इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं बोला क्योंकि नीचे आने ही वाला था. सो आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट टाकायासु आर्थराइटिस हियर. सो दिस इज नथिंग बट ऑल्सो कॉल्ड एज पल्सलेस डिजीज और ऑर्टिक आर्च सिंड्रोम. टाकायासु आर्थराइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पल्सलेस डिजीज और ऑर्टिक आर्च सिंड्रोम. एज एट द प्रेजेंटेशन इज जनरली लेस देन 40 ईयर. सो यहाँ पे देखो ऊपर में कितना दे रहा है, जनरली 60 ईयर का दे रहा है. सो ये तो ऑप्शन रूल आउट हो गया बट विल स्टिल लुक मोर थिंग अबाउट दिस. आर्टरी अफेक्टेड इज सबक्लेवियन आर्टरी. वहाँ पे टेम्पोरल बोल रहा है, यहाँ पे सबक्लेवियन. सो अगेन दिस हैज बीन एक्सक्लूडेड. क्लिनिकल फीचर इफ वी सी लॉस ऑफ पल्स इन अपर एक्सट्रीमिटी, पल्स डिफरेंस इन अपर एंड लोअर लिम. देयर विल बी डिफरेंस इफ यू टेक द पल्स इन द अपर लिम एंड देन टेक पल्स इन द लोअर लिम. देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन these two pulses. बायोप्सी if we take we'll see giant cell and granuloma present in Takayasu arteritis. आगे देखो टेम्पोरल आर्टेराइटिस. आवर आंसर विल बी दिस ओनली, टेम्पोरल आर्टेराइटिस. कैसे मैं आपको बताता हूँ. देखो टेम्पोरल आर्टेराइटिस में जनरली क्या होता है, एज इज ग्रेटर देन मोर देन 50 ईयर्स. एज इज मोर देन 50 ईयर्स. मोस्ट कॉमन वास्कुलाइटिस इन एल्डरली पीपल. ठीक है. मोस्ट कॉमन वास्कुलाइटिस दैट इज टेकिंग प्लेस इन द एल्डरली पीपल. आर्टरी अफेक्टेड इज नथिंग बट द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. मैच कर रहा है हमारे क्वेश्चन से. यहाँ पे देखो along with temporal artery. So this is along with superficial temporal artery. Other arteries are also involved, the most common being the superficial temporal artery. Next, this can affect in the ophthalmic artery also and vertebral artery also, but most common presentation will be from the superficial temporal artery. It is associated with polymyalgia rheumatica and increased ESR. Polymyalgia rheumatica and increased ESR will be also associated with this generally temporal arteritis. If we see the clinical features, there will be headache, जो ऊपर हमने अभी देखा, यूनिलैटरल थ्रॉबिंग हेडेक है ना. जॉ पेन विल बी देयर, जॉ क्लॉडिकेशन, द मोस्ट स्पेसिफिक साइन बीइंग द जॉ क्लॉडिकेशन एंड ब्लाइंडनेस कैन आल्सो, इफ दिस ऑप्थेल्मिक आर्टरी इज इन्वॉल्व इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस आल्सो. एंड बायोप्सी विल सी जाइंट सेल एंड ग्रैन्युलोमास. ठीक है. आगे चलो देखते हैं. एचएसपी यानी कि क्या है, हिनॉक्सनोलिन परप्यूरा. सो इसमें अगर हम देखें तो दिस इज आईजी मेडिएटेड एंड इट इज मोस्टली इन चिल्ड्रन. यहाँ पे 60 ईयर दे रहा है. जनरली अगर हम इसमें जनरली प्लेटलेट की बात करें तो आइदर इट विल बी नॉर्मल और इट विल बी इंक्रीज्ड. परप्यूरिक रैश यूजुअली ऑन द लोअर लिम्ब. अभी देगा इसका क्वेश्चन देगा अभी. लोअर लिम्ब पे जनरली परप्यूरिक रैश का हिस्ट्री देगा. क्लिनिकल फीचर विल बी परप्यूरिक रैश, अर्थाल्जिया, एब्डोमिनल पेन, रीनल. मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड हियर विल बी नथिंग बट द किडनी एंड द पेशेंट विल बी प्रेजेंटिंग विथ हेमेटयूरिया. दिस इज हेनॉक्सनोलिन परप्यूरा. अभी आगे देखो. क्रोनिक सिगरेट स्मोकर प्रेजेंटेड विथ पेन एंड ब्लैक नेक्रोटिक फिंगर्स. ये देखो ब्लैक नेक्रोटिक फिंगर्स. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली
जनरली डायग्नोसिस। तो जनरली देखो बर्जर्स डिजीज मैंने ऊपर बताया, एक होता है BU वाला, एक है BER वाला। सो दिस BER वाला इज जनरली हेमेटूरिया आफ्टर अ सोर थ्रोट द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ हेमेटूरिया, सो दैट विल बी बर्जर्स डिजीज। इफ वी सी thromboangiitis obliterans, so this is nothing but where there will be जनरली थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस जिसके बारे में हमने अभी ऊपर बात किया था, BEU वाला है ना, BEU वाला वर्जर्स डिजीज। सो देयर विल हैव द डिस्टल फिंगर्स विल हैव गैंग्रीन ड्यू टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से डिस्टल फिंगर्स पे विल सी गैंग्रीन। इसको फॉर्नियर गैंग्रीन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। फॉर्नियर गैंग्रीन इज प्रेजेंट इन, इट इन्वॉल्व्स द स्क्रोटल स्किन। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स स्क्रोटल स्किन, नॉट द डिस्टल फिंगर्स। ठीक है, डिस्टल फिंगर्स को इन्वॉल्व नहीं करता। डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बात करें तो देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ लिम्ब स्वेलिंग। ठीक है, देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ लिम्ब स्वेलिंग। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो आ गया क्वेश्चन, 8-year-old पेशेंट प्रेजेंट्स विथ एब्डोमिनल पेन। ठीक है, एब्डोमिनल पेन, रैशेज ऑन लेग्स, दिस रैशेज ऑन लेग्स। फर्स्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, है ना, यहाँ पे मैंने जब HSP पढ़ाया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज IgA मेडिएटेड मोस्टली चिल्ड्रेन। सो फर्स्ट मिल रहा 8-year-old चिल्ड्रेन। पेशेंट में जनरली प्लेटलेट वहाँ पे दिया नहीं हुआ है। परप्यूरिक रैश यूजुअली ऑन लोअर लिम, मैच कर रहा है, परप्यूरिक रैश लोअर लिम में जनरली प्रेजेंट होता है। क्लिनिकल फीचर क्या है, एब्डोमिनल पेन मैच कर रहा है, देखो। सो दिस फीचर्स आर मैचिंग हेयर, पेन, एब्डोमिनल पेन, रैशेज ऑन लेग। सो दिस इज नथिंग बट HSP, माइक्रो एंजियोपैथी है ये। ठीक है, HSP। अभी आगे देखो, मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट इन डाउन सिंड्रोम। कार्डियक डिफेक्ट, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन पेडियाट्रिक्स ऑल्सो। देयर दे विल बी, यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेरिफेरल पल्मोनिक, जनरली स्टेनोसिस, एनोमोलस ओरिजिन। डायरेक्टली देता है कि जनरली मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट कौन है, तो हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के लिए जा सकते थे। But here they are mentioning in the Down syndrome, especially the children with Down syndrome, they present with what type of cardiac defects? So they present with, that is nothing but ASD, that is atrial septal defect, and that is a endocardial cushion defect. And in that also, in the pediatrics, they will be giving you ostium primum ASD and ostium secundum ASD. So be very clear at this point of time only that that will be ostium primum ASD. ठीक है, ostium primum ASD। आगे देखो, हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग इन 12 आवर्स आफ्टर इस्चेमिक इंजरी टू हार्ट। आफ्टर 12 आवर कौन से जनरली चेंजेस देखे जाते हैं? सो दिस इज नथिंग बट हाइपर इओसिनोफिलिया ऑफ मायोसाइट्स। कोगुलेशन ऑफ नेक्रोसिस ऑफ मायोसाइट्स, जनरली कोगुलेशन नेक्रोसिस ऑफ मायोसाइट्स इज सीन आफ्टर 24 to 48 आवर्स। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर टाइप ऑफ हार्ट लीजन सीन इन पेशेंट्स ऑफ रूमेटिक आर्थराइटिस। देखो, रूमेटिक जनरली आर्थराइटिस जनरली लीड्स टू, और या फिर इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस की अगर हम बात करें तो इट विल हैव लाइक ऑस्लर नोड्स, जेनुए लीजन्स, रॉथ लीजन्स, स्प्लिंटर हेमरेज। चार चीज़ें होती है, ये चारों चीज़ें हमको जनरली उसके जो क्राइटेरियाज होते हैं वहाँ पे आपको पढ़ना होगा इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में। सो लेट्स सी इन वेरी शॉर्ट। देखो, ऑस्लर नोट्स मैंने ऐसे ही करके, दिस इज माई ओन हैंड राइटिंग, आई हैव जस्ट रिटन इट एंड आई पुट इट ऑन अ स्टिकी पेपर एंड आई हैड स्टिक इट ऑन माई नोट्स। सो जनरली वहीं से मैंने ये पिक्चर लेके रखा है यहाँ पे। आप देखो, ऑस्लर नोट्स जनरली इट इज अ पेनफुल इन पल्प ऑफ फिंगर एंड सोल्स। इट इज अ ब्लिस्टर, है ना, एक ब्लिस्टर होता है जनरली विच इज पेनफुल इन पल्प ऑफ द फिंगर एंड सोल्स, दैट इज नथिंग बट ऑस्लर नोट्स। इफ वी सी जेनुए लीजन्स, है ना, जेनुए लीजन्स की अगर हम बात करें, सो दिस इज नॉन पेनफुल। सो द मस्ट थिंग जनरली यहाँ पे हमको क्या पता चलना चाहिए कि अगर नॉन पेनफुल है तो वो जेनुए लीजन है, एंड इफ इट इज पेनफुल इन पल्प ऑफ फिंगर एंड सोल्स दैट इज ऑस्लर नोड्स। ये नॉन पेनफुल होगा एंड इट विल बी इन पाम्स एंड सोल्स, नॉट ऑन द पल्प ऑफ द फिंगर, इट विल बी ऑन द पाम्स। ठीक है, सो दैट इज जेनुए लीजन। इफ वी टॉक अबाउट रॉथ लीजन विल बी ओवल एंड रेटाइनल हेमरेज। दिस रॉथ लीजन्स विल बी सीन इन द जनरली रेटिना वेयर देयर विल बी ओवल रेटाइनल हेमरेजेज प्रेजेंट। आगे देखो, स्प्लिंटर हेमरेज। स्प्लिंटर हेमरेज इज जनरली लीनियर सब अंगुअल डार्क रेड in finger. So these are all about generally the lesions that are associated with the infective endocarditis और generally rheumatic arthritis की भी जो यहाँ पे बात की जा रही है। so यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ऑस्लर नोड्स। सो ऑस्लर नोड्स इज नथिंग, इट इज सीन ऑन फिंगर ऑन टोज एसोसिएटेड विद इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। रूमेटिक हार्ट डिजीज में अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमन वॉल्व दैट विल बी इन्वॉल्व्ड हियर इज द माइट्रल वॉल्व, लीस्ट कॉमन वॉल्व दैट इज इन्वॉल्व्ड हियर इज पल्मोनरी वॉल्व। acute RHD, acute rheumatic heart disease में there will be mitral regurgitation,
chronic rheumatic heart disease में there will be mitral stenosis, fish mouth, buttonhole है ना appearance. Most characteristic lesion is Ascough bodies is nothing but aniscocells fibrinoid nucleus. Everything you need to know about this topic यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे देखो, ये मैकलम पैच है ना, ये रूमेटिक आर्थराइटिस में ये यहाँ पे जनरली होगा. देखो क्या होगा, ड्यू टू रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से जनरली इरेगुलर फाइब्रोटिक थिकनिंग ऑन पोस्टेरियर लेफ्ट एट्रियल वाल, जिसको हम जनरली इरेगुलर एक फाइब्रोटिक थिकनिंग हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैकलम्स पैच. सो दिस विल बी आवर आंसर हेयर. ठीक है, द फॉलोइंग द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप ऑफ हार्ट लीजन सीन इन पेशेंट विथ रूमेटिक आर्थराइटिस. चलो आगे दिखाता हूँ. Which is the most common cause of death in rheumatic heart disease? Most common cause of death in rheumatic heart disease is nothing but cardiac failure. Heart के problem से generally the person will be dying. Which is the earliest histopathological change in myocardial infarction? Myocardial infarction में generally which is the earliest histopathological change? Earliest histopathological change देखो, stretching and waviness of fiber will be seen in 0 to 6 hours. ठीक है, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम 6 to 12 hours. कोगुलेटिव नेक्रोसिस वी कैन सी आफ्टर 6 to 12 hours and completely by 48 to 72 hours. It will take so much time. Whereas the fibrovascular response will see at 3rd to 7th day. So यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, अर्लीस्ट पूछा है, दैट इज 0 to 6 hours, दैट इज स्ट्रेचिंग एंड वेविनेस ऑफ द फाइबर्स. मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर. मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक, देखो ट्यूमर के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं मैं यहीं पे एक ही बार बोल देता हूँ, दैट इज रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजी, है ना, तो आपको कहीं पे जाना ही नहीं होगा. सो लेट्स सी, अगर ट्यूमर्स ऑफ हार्ट में जनरली हम बात करें तो मोस्ट कॉमन जो कार्डियक मैलिग्नेंसी, हार्ट हो या फिर लंग्स हो, दे आर नथिंग बट मेटास्टेसिस. जनरली मोस्ट कॉमन जो कार्डियक मैलिग्नेंसी है दैट इज मेटास्टेसिस. मोस्ट कॉमन फॉर सीएनएस में भी जो मेन कॉज होगा दैट विल बी मेटास्टेसिस. हार्ट, लंग्स एंड लिवर, दे ऑल हैव द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इज फ्रॉम द मेटास्टेसिस. अगर हम मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर इन एडल्ट की बात करें, मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर इन एडल्ट दैट इज नथिंग बट बेनाइन की बात करें तो मिक्सोमा एंड मैलिग्नेंट की बात करें तो एंजियोसार्कोमा. इफ दे आस्क यू इन चिल्ड्रन मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर, तो बेनाइन कौन सा होगा, रेब्डोमायोमा. मोस्ट कॉमन प्राइमरी बेनाइन ट्यूमर इन जनरली कार्डियक प्राइमरी बेनाइन ट्यूमर इन चिल्ड्रन विल बी रेब्डोमायोमा, और मैलिग्नेंट की बात करें तो रेब्डोमायोसार्कोमा. मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक वाल्व ट्यूमर, मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक वाल्व ट्यूमर अगर बात करें दैट विल बी पैपिलरी फाइब्रोइलास्टोमा. सी एनिमॉन लाइक अपीयरेंस विल बी सीन देयर, दैट इज पैपिलरी फाइब्रोइलास्टोमा. सो यहाँ पे हमको क्या पूछा, मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर डायरेक्टली पूछ दिए. सो दैट इज बेनाइन की बात किया जा रहा है एंड दैट इज मिक्सोमा.